Hello and welcome to Educational Wisdom YouTube channel. This is Intelligence Test question paper solution of 5th Scholarship Exam 2021. We will solve the questions of Intelligence Test in this series, in this video. This is question number 26. Question number 1 to 25 will be third language questions. That means if you are from English medium, the questions will be from Marathi. And if you are from Urdu or Marathi or Kannada medium, then the questions will be from English language. So this is question number 26, intelligence test. Question is, in the word extraordinary, which is the letter at the fourth place to the right of the letter O? What we have to do is find the letter O in the word. Letter O is here, and which is the letter at the fourth place to the right of letter O. Fourth place to the right of letter O. This is first, this is second, I is third, and N is fourth letter. So N is the answer of this question. Where is N? It is in option number 4. So our answer will be number 4. Question 27 to 31. Direction is find the odd term. We have to find odd term in questions from 27 to 31. That means four options will be given. All those options or things will have the same quality. Only one out of them will be different, will be odd. So we have to find that odd term, odd thing, and write it as an answer. So question number 27, there are four options: Moon, Mars, Jupiter, and Saturn. Which is the different one? So how to find the different thing? We have to find the common things between the three terms. What is common between them? So when we read the words Moon, Mars, Jupiter, and Saturn, we easily find it that these are the names of planets. Mars is a planet, Saturn is a planet, and Jupiter is a planet. But Moon, it is different. Why? Mars, Saturn, and Jupiter, they all revolve around Sun. They all revolve around Sun, but this Moon revolves around the Earth. So option number 1 is odd term. That is our answer. Question 28. Number series is given 9, 65, 26 and 126. We have to find the odd term. We have to find the different one. But how to find? I have already told you. Find the common thing between the three terms. What is common between them? Look at the numbers. This 2. This is actually cube of number 2. 9 is actually the cube of 2. No, it is not a cube. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Then we find the cube as 8. Then 1 is added in that number. Cube of 2 is 8 plus 1 is equal to 9. What about 65? It is also same. Find the cube of 4. 4 multiplied by 4 multiplied by 4. What is the number? 4 into 4, 16. 16 into 4, 64. Add 1 in it. 64 plus 1, it becomes 65. It is correct. Now come to 26. No, come to 126. It is the cube of 5. 5 multiplied by 5, 25. Again multiplied by 5, it becomes 125. Plus 1, it becomes 126. This, look at now this 26 number. Cube of 3. Cube of 3 is 3 into 3, 9. 9 into 3, 27. And plus 1, 28. This should be 28, but it is not. It is 26. That is why it is different. Option number 3 is the answer of this question. Question 29. 386, 264, 275, 495. We have to find the odd term. How to find? Find the similar quality in three numbers. So this is very simple. It is actually a sum of first digit and the third digit. First digit in option number 2 is 2 and third digit is 4. What is equal? What is the
answer of its addition 6. 6 is written in the middle. Look here, 2 and 5. When we add 2 plus 5, it becomes 7. 7 is written here. 4 plus 5, 9. 9 is also here. 3 plus 6, 9. But here 8 is written, so it is different. Option number 1 is the answer of this question. Question 30. Millennium, second, century and light year. We have to find the different one. We have to find the odd one. Millennium, second and century. All these words are used to describe the duration, time. It describes the duration. Second, unit of time. There are 60 seconds in 1 minute. Century, it means the duration of 100 years. What is millennium? It is the duration of 1000 years. What is light year? Light year is actually used to tell the distance. How to find it? How do we use light year? If we have to find the distance from Earth to some distant planet in the space, we find that distance using light year as a unit. I will not explain in the detail here because we don't have much time. So you can find it on the internet easily what is light year. So light year is used to describe the distance. So option number 4 is the answer. Question 31. We have to find the odd one. देखिए इसको, तीन जो है इमेजेस एक जैसे हैं, ओनली वन इज डिफरेंट. विच वन इज डिफरेंट? ये देखिए सबके सब सेम है. लुक एट दिस हार्ट. 2, 3. अब यहां पे देखिए ये उल्टा हो गया है, सो इट इज डिफरेंट. ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर. क्वेश्चन 32. इन द लेटर सीरीज, वन लेटर सीरीज इज गिवन, यहां तक है वो. हाउ मेनी टाइम्स M is preceded by E and is immediately followed by T. इसका मतलब क्या है? हमको पहचानना है M के बाद E और T कितने बार आए हैं. ये देखिए M, इसके बाद ENT आया हुआ है एक बार. ये M, इसके बाद ENT नहीं है, E है बट S नहीं है. M के बाद ENT यहाँ पे है, सो इट इज सेकेंड टाइम. M उसके बाद E है लेकिन यहाँ पे T नहीं है, सो देर आर ओनली 2 टाइम्स. कहां पे लिखा हुआ है? इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन 33. फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो. 4, 7, 13, 25, 49 and question mark. How to find the answer of this question? We have to find the relation between these two numbers. We have to find what is the theme between them, what is the rhythm between them. क्या rhythm है, क्या रिलेशन है उनका एक दूसरे के बीच में. तो देखिए 4 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है? बहुत ही सिंपल है, इनका डिफरेंस हम निकालते हैं. व्हेन वी ऐड 3 into 4 it becomes 7. When we add 6 in 7 it becomes 13. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 ऐड किए गए, यहाँ पे 6 ऐड किए गए. When we add 12 in 13 it becomes 25. ठीक है, तो देखिए रिदम कैसे बन रहा है? 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, अब 12 का डबल आना चाहिए यहाँ पे 24. तो देखिए 25 में जब 24 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 49. ये भी करेक्ट है. तो ये डबल होता जा रहा है. अब हम क्या करेंगे फिर? 49 में कितने ऐड करेंगे? 48. तो हमारा आंसर मिल जाएगा. व्हेन वी ऐड 48 in 49 it becomes 97. So our answer will be 97. It is given in option number 3. Question 34. In the given figures there is a particular sequence. Identify the sequence and find the figure which will replace the question mark. अब सीक्वेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस फिगर में जो डिटेल्स हैं उसके सीक्वेंस देखेंगे. ये पहले से स्टार को देखिए, ये स्टार आ गए यहाँ पे ऊपर. फिर जब हम नेक्स्ट इमेज में जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए यहां आ गया है. फिर नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट पिक्चर में एंटी क्लॉकवाइज अगेन मूवमेंट किया और यहां आ गया. अब नेक्स्ट जो पिक्चर होगा उसमें कहां आएगा? उसमें इस साइड आएगा वो स्टार. कहां दिया हुआ है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में है और
सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, अब आगे किसी और चीज को देखते हैं। ये देखिए, ये रेक्टेंगल को देखते हैं, ये यहाँ पे है, नेक्स्ट इमेज में आ गया नीचे, फिर उसके बाद की इमेज में आ गया इस तरफ। अब नेक्स्ट इमेज में जब आएगा तो यहाँ ऊपर आना चाहिए। कहाँ पे है? 2 और 3 ऑप्शन में ही देखना है बस, तो इसमें सिर्फ यहाँ दिया हुआ है, सो आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, इन द नंबर सीरीज बाय हाउ मच इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स इज मोर और लेस देन द सम ऑफ कंपोजिट नंबर्स। इसमें देखिए हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। हमको इसमें से निकालना है प्राइम नंबर्स कौन कौन से और कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो सिर्फ 1 से या अपने आप से डिवाइड होता है, अपने आप से यानी जो नंबर लिया गया है वही। फॉर एग्जांपल 7, ये 7 किससे डिवाइड होता है? या तो 7 किसके टेबल में आएगा, या तो 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, किसी और टेबल में नहीं आता है, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? वो 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा और कम से कम किसी और एक नंबर के टेबल में आएगा। फॉर एग्जांपल ये 6 आता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो अब हमको नंबर ढूंढना है प्राइम नंबर्स। 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये 2 के टेबल में आता है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, यहां लिखते हैं इसको। 8 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो ये भी हो गया कंपोजिट नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। 7 ये प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आता है, इसको यहां लिखते हैं। 3 भी प्राइम नंबर है। 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर क्योंकि इट कम्स इन द टेबल ऑफ 1 and 5 ओनली। 9 नहीं है प्राइम क्योंकि इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3 and 9, 3 के भी टेबल में आता है, तो 9 विल बी रिटन हियर। 4 कंपोजिट नंबर है, अगेन 2 के भी टेबल में आता है। 2 ये नहीं है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर है, इसलिए इसको लिखते हैं यहां। 1 इसको रिमेंबर, इसको याद रखिए, आपके मैथ्स के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में भी आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन द नंबर सीरीज बाय हाउ मच इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स इज मोर और लेस देन द सम ऑफ कंपोजिट नंबर। दोनों की सम करना पड़ेगा। सम मीन्स एडिशन। व्हाट इज द एडिशन? 7 + 3 10, 10 and 5 15, 15 and 2 17। यहां पे देखिए 6 and 8 14, 14 and 9 23, 23 and 4 27। तो इन द नंबर सीरीज बाय हाउ मच इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स का सम, is more or less than the sum of composite number? It is actually prime number is less. By how much? कितने का डिफरेंस हो रहा है? डिफरेंस ऑफ 10, तो it is less by 10. ऑप्शन नंबर 2 is the answer. Question 36. Find out the mirror image of each of the following question figure from the alternatives given. बहुत ही सिंपल है, this is question figure, इसकी मिरर इमेज निकालना है। ये यहां पे देखिए आप, ये जो दिया होता है ना, इसके हिसाब से हमको इमेजिन करना है, इस इमेज को पलटा देना है ऐसे। ये जिस तरफ ये आपको दिखेंगे ना ये लाइंस, उस तरफ पलटा देना है। तब यहां दिख रहे हैं तो इसको हम इस इमेज को इस तरफ पलटा के इमेजिन करेंगे वो कैसी दिखेगी। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें, n जाएगा इस साइड, अब यहां पे निकालते हैं हम, n जाएगा इस साइड और b आएगा इस साइड। ये कहां कहां दिया हुआ है? ऑप्शन 1, 2 and 4 में। अब आगे देखिए, ये जो b है, जब इसको उल्टा इस तरह से पलटाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। ये कहां कहां दिया हुआ है? ये यहां नहीं है, ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 2 में है। अब n को जब पलटाते हैं तो वो बनेगा ऐसे, ये लाइन ऐसी बनेगी, उसके बाद ये बनेगी ऐसी और ये इस तरह से। ये कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहां देखिए, इसमें भी वैसे करना है आपको, इस तरफ पलटाना है इमेज को। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई है इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर के हिस्से को पहले देखते हैं। ये देखिए, ये जो जब बना हुआ है ना, इसको हमको इस तरफ पलटाने के बाद ये कैसे बनेगा इसको इमेजिन करना है।
इमेजिन क्या करना है, अपने पेपर में बनाना है जहाँ पे रफ चीज़ निकालने के लिए जगह दी हुई है। ये ऐसे होगा, ये जो ट्राइंगल है इसका कॉर्नर वाला वो इस साइड आएगा ऐसे, और ये जो इसकी लाइन है यहाँ पे ये नीचे की नीचे रहेगी, ऐसे आएगी यहाँ। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये जो सर्कल है वो एज इट इज़ रहेगा। हो गया। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 1 में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए नीचे वाली लाइन, इसको देखिए ये कैसे बनेगी, ये जब इसको पलटाएंगे हम तो ये बनेगी ऐसे ऐसे। ये कहाँ कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में तो नहीं है, ये 2 में देखिए ऐसी नहीं है, छोटी और बड़ी लाइन दोनों सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली ऑप्शन नंबर 4 हैज़ दिस image or that sign, so option number 4 is the answer of this question. Question 38, in the given alphabetical series which group of letters will occur at the place of question mark? question mark कितने जगह है, 4 जगह है। तो अब देखिए टोटल कितने होंगे, ये कितने लेटर्स हैं अल्फा, वो हमको ढूंढना है क्वेश्चन मार्क के साथ। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल हो जाते हैं 15। अब अगर ये 15 हो रहे हैं तो इनका पहले हमको ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये कितने ग्रुप में डिवाइडेड है, कितने एक ग्रुप में कितने लेटर्स हैं। ये पूरा एक जैसी सीरीज नहीं होती है, ये ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर लेटर्स के। कितने लेटर्स का एक ग्रुप बन रहा है ये हमको पहले निकालना पड़ता है, फिर ऐसे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जब गौर किया तो मुझे पता चला कि ये 5 लेटर्स का एक ग्रुप है, ये 5 का एक, ये 5 का एक, और ये लास्ट के 5 का एक। तो देखिए सबसे पहले अब ये लास्ट वाले में आइए, पहले क्या आता है, m आता है। ये लास्ट वाले में दिख रहा है ना, सबसे पहले m, तो यहां आएगा m। ठीक है, फिर उसके बाद यहां तो क्वेश्चन मार्क है। यहां देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है, m है, तो दूसरे में क्या आएगा, यहां देखिए दूसरे में भी m है, तो यहां भी m आएगा। फिर तीसरे में क्या है, n है, इसके तीसरे में भी, ये फर्स्ट है इसका, ये सेकंड है, यहां पे आएगा n। ठीक है, फोर्थ में क्या है, यहां m है, यहां भी m लिखना पड़ेगा, और यहां भी m लिखना पड़ेगा। लास्ट में यहां n है, यहां भी n है, और यहां भी n है। तो देखिए कौन कौन से बन गए, m m n m m, 2 times m, then 1 time n, 2 times m। ये कहाँ दिया हुआ है, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। दिस इज आवर आंसर। तो ये था वीडियो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 38 तक। अब इससे आगे 39 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस आपको वीडियो नंबर 2 में मिलेंगे। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू as much of your friends as you can, because they should get the benefit of this education revolution. So goodbye for now.